राइट बच्चे, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 से मेरे साथ सॉल्व करो, और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। डिफाइन पॉलिनोमियल, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, तो वो अपने आप से फिनिश कर लेना। वी आर डिस्कसिंग 11th क्वेश्चन। मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आई विल क्विकली टेल यू हाउ टू डू इट एंड यू विल डू इट ऑन योर ओन, राइट? तो बहुत रैपिडली फिनिश करेंगे इसे। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1, so that means alpha plus beta is given to you 1. Write the value of k here. आपको पता है sum of zero is given by minus b by a. The value of minus b by a is given as 1, right or not? Okay. तो minus b by a में what is minus b here? b is minus 3. तो minus b will be positive 3. By a would be by k. So this is given to you 1. इसमें से k का वैल्यू फाइंड करना हो जाएगा ना? कुछ मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन? चले नेक्स्ट करें। In the figure 2.14, the graph of polynomial p of x is given. Find the zeros of the polynomial. So zeros of the polynomial are this and this. So this is minus 1, right? And minus 3.5. Got it or not? Graphically zeros कैसे दिखते हैं? The point at which the graph cuts x-axis, right? So एक point is minus 1, एक point is minus 3.5 because it is in the middle of minus 3 and minus 4. No? ठीक है ना? चलें अभी आगे. Next one. The graph of polynomial y is equals to function of x shown in the figure 2.15. Find the number of real zeros of fx. So इस diagram के अंदर real zeros कितने हैं? 1 and 2. Right or not बच्चे? Won't it be 3? How 3? Tell me. The parabola is touching the x-axis, so there will be two equal roots over there. हाँ लेकिन वो वैल्यू तो सेम है ना? But it has तो नंबर ऑफ रियल जीरोस तो 2 ही हुए ना बच्चे? आई अंडरस्टूड योर पॉइंट. तो आप इसे ऐसे लिख दो 3 zeros because this is cubic polynomial, no? तो you write it as from here you've got two equal zeros and this is 1. So because this is a cubic polynomial, so 3 zeros. Okay. Next one, the graph of the polynomial y. Achha, this to we have discussed 3 zeros. The graph of a polynomial f of x is shown in the figure 2.16. Find the number of zeros of fx. देखिए एक बार scroll करें नीचे. Yes. तो कौन सा है ये polynomial? pi quadratic. So how many zeros? How many real 4. zeros? 4. चले अभी आगे. If x is equals to 1, is the zero of the polynomial this? Write the value of k. Ma'am, हाँ जी बेटा. ma'am, how is the 14th one biquadratic? Isn't it intersecting at just 2 points? बेटू it is, देखो ना बाय क्वाड्रेटिक में हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम 4 zeros हो सकते हैं, राइट? है ना? और ये Oh, sir, ma'am, I दो got it. दो Yes, दो पैराबोलास है ना यहाँ पर ये, right. right? Okay, if x is equals to 1 is a zero of the polynomial. If this is a zero, इसका मतलब x minus 1 is a factor of this, no? पॉइंट के लिए बता रही हूँ आपको सिर्फ. तो इफ दिस इज द जीरो, तो इसका मतलब देखो ऐसे ऐसे समझते हैं इसे. इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के and x is equals to 1 is a zero of this polynomial, that means f of 1 is equals to 0, right or not? है ना बच्चे? तो इसका मतलब आई विल पुट एज x क्यूब मीन्स 1 क्यूब minus 2 1 square plus 4 into 1 plus k is equals to 0. Got it or not everyone? बस अब इसको सॉल्व कर लो, k का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से. क्लियर? नेक्स्ट वन. Write the quadratic polynomial sum of whose zero is 2 root 3 and their product is 2. तो फॉर्मूला क्या था? k times
x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x सम टाइम्स x, सम ऑफ x ऐसे लिखती हूँ, प्लस प्रोडक्ट, है ना। ये k क्या है, ये क्या है k, व्हाट इज दिस k? Constant. Constant. कांस्टेंट, राइट। तो अभी यहाँ पर इसको फ्रेम करने के लिए आई एम राइटिंग k is equals to x times x square minus sum is 2√3 x plus product is 2, where k is 1 or it is a non-zero number, non-zero real number. जीरो नहीं हो सकता के, राइट एवरीवन और नॉट? ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके कोएफिशिएंट्स बताने हैं। तो क्वाड्रेटिक टर्म क्या है, अच्छा नहीं क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, z to the power 5 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ z to the power 5 is 1, देन z स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज -2 एंड z to the power 0 या फिर कांस्टेंट इज 4। अच्छा, जब आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स बताते हैं ना बच्चे, तो इफ इवन यू मिस दिस वन दैट इज ओके। आप कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड ना करो कोएफिशिएंट्स में, दैट इज ओके। सो यू विल से कोएफिशिएंट ऑफ z to the power 5 is 1 and coefficient of z square is -2. Got it or not? So you can miss the constant term from there. जल्दी से कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट करें। Done. इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो उससे सॉल्व कर दो, इसके जीरोस फाइंड कर दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फटाफट डिवाइड करो इसको, इसके फैक्टर्स बनाओ और जीरोस फाइंड करके बताओ मुझे क्विकली। Ma'am, 3 and -2. सबका सेम आ रहा है आंसर? What? Ma'am, -3 and 3 and -2. done. चलें आगे बच्चा। Ma'am, the कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम? 19th. ma'am. चले अभी कौन सा क्वेश्चन था, अभी हम कौन सा कर रहे थे क्वेश्चन? Ma'am, we are on Just finished यहाँ 18th. पर राइट 18th, we finished 18th, right, we finished 18th. Now if alpha beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus beta is -6, मतलब sum is -6, product is -4, write the polynomial. What an easy question है ना। k times x square plus 6x minus 4 where k is a non-zero real number, है ना। Got it or not? हो गया नहीं क्वेश्चन सॉल्व? ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, इसी को अगर can we write this formula without the k? कम अगेन? Can I नहीं, write this? अरे नहीं, हाफ मार्क्स काट सकती है टीचर। नो 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 नो, एवरी टाइम यू हैव टू राइट के। Ma'am, so if I फाइनल write, बोर्ड्स में के लिखकर भी आना है और वेयर के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर भी लिखकर आना है। इफ यू मिस ऑन दैट तो फिर मार्क्स कट सकते हैं, but ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगेन वही इसको 3 में पुट करो एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 0, तो के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सिंपल है ना क्वेश्चन। For what value of k -3 is a zero of this, तो again -3 put करो and this should be equals to 0, यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। For what value of k -2 is a zero, again -2 put करो। तो ये क्वेश्चंस अपने आप से कर लेना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
23rd डिस्कस करें. If x plus a is a factor of this, find a. If x plus a is a factor of this polynomial, इसका मतलब x plus a का 0 find करो, that is x is equals to minus a. Now p of x, which is 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, आप इसे जब p of minus a find करेंगे तो this should be equals to 0. इसका मतलब आप 2 minus a square plus 2a into minus a plus 2 into minus a plus 10, this should be equals to 0. माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है तो ये 2a स्क्वायर, ये माइनस और ये पॉजिटिव साइन मिलाकर इट शुड बी नेगेटिव 2a स्क्वायर, कैंसिल हो गया. देन दिस इज minus 2a plus 10 is 0. So minus 2a is minus 10. So a is 5. कोई प्रॉब्लम? सॉल्व ही हो गया बताते बताते. ठीक है, सिंपल था. आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अवेश कहाँ है? अवेश समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. आर्यादित्य समझ में आ रहा है? नैतिक और नीचे घुस जाओ बच्चे, Excuse me, दिखना ma'am. नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी. ऐसा कर, लेट जा, छोड़ चेयर को, पूरा बेड पे जाके लेट जा. बेटा रिक्लाइनर इसलिए नहीं होता चेयर के अंदर कि आप उस पे सो जाओ. Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम सेकंड स्टेप में 5 का क्या हुआ? अच्छा, मुझे भी नहीं पता चला 5 का क्या हुआ. हाँ बेटा, 5 बाय मिस्टेक 2 बन गया, तो -5 है वो. किसी ने नहीं पकड़ी. अगम गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड. प्लीज इसके आगे करेक्शन अपने आप कर लेना. बाकी सबको गुड मॉर्निंग. चलो सब सो जाओ. मैम कह रही है -2 आएगा तो -2 आएगा, है ना? हाँ हाँ. मैम, थोड़ी देर शोधा रहते हैं. अच्छा ले चलो. मैम उसमें 5 को हमने एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूट किया. किसको 5 के चेंज किया? ब्रैकेट में मैंने लिखा मैम. बेटू 5x था ना, तो x को माइनस से चेंज किया ना. ओके 5 तो मैम. ऐसा ही रहा. और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ 0 ऑफ अ. बस इससे ज्यादा बार बार एक ही बात नहीं कर सकते. वही वैल्यूज में पुट करके इसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है. ठीक है ना? सिंपल एकदम. इफ 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो 1 को इसमें पुट करो, इट शुड ऑल बी इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू फाइंड कर लो. If alpha and beta are the zeros of this polynomial, find the value of alpha plus alpha beta. Very smart question. So when they are asking you alpha plus alpha beta, so alpha plus beta is sum of zeros and plus product. Actually, they are asking you the sum of sum and product of the zeros. Right or not? है ना बच्चे? तो अभी इसका मतलब हमें आप इसका सम भी फाइंड करना है, विच इज -b/a से निकल जाएगा, दैट इज -7/2. राइट, ये सम पता चल गया हमें. और अब प्रोडक्ट पता करने के लिए c/a होता है. अब ये सब पता है ना बेटा? Yes, ma'am, पता है. तो प्रोडक्ट c/a होता है, तो इसका मतलब 5/2 हो गया. तो सम प्लस प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब -7/2 प्लस 5/2 सॉल्व करना है, विच इज -2/2, विच इज -1. अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? सिंपल नो? वेरी सिंपल. चले Ma'am, आगे. ma'am, we have to do this simultaneously, or do we have to do this later? अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो स्पेसेस छोड़ते जाओ, क्वेश्चंस के हिंट लिखते जाओ.
कोशिश करो कर पाओ, क्योंकि जब मैं आरडी शर्मा कर रही हूँ, जब मैं इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रही हूँ या एडवांस कंटेंट कवर कर रहे हैं, तब हम बहुत ज्यादा थियरी थियरी नहीं मांग रही हूँ मैं आपसे। डूइंग दैट, सब्ट्रैक्टिंग दिस, ब्रिंगिंग दैट मैं नहीं मांग रही हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि मैं आपका माइंड ट्रेन कर रही हूँ, आप उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो, और जब टेस्ट आएंगे तो उसे प्रॉपरली सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करके देना मुझे। अभी के लिए बस भागो मेरे साथ। ओके, चलिए अभी करें नेक्स्ट। अभी कल ही मैं एक मेरी टीचर से डिस्कशन कर रही थी। वो टीचर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, रफली 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का। तो हम लोग आपस में मतलब कुछ कंक्लूड करना चाह रहे थे कि इस स्कूल पैटर्न ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फॉर्मली इज दैट गुड, और इज माय पैटर्न ऑफ रनिंग विद द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज गुड, तो विच इज बेटर, वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो शी वॉज गिविंग मी आर्ग्यूमेंट्स कि मैम मार्क्स तो अच्छी प्रेजेंटेशन से ही आएंगे, बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होएगी तो नहीं आएंगे मार्क्स। तो देन आई सेड मेरे तो इतने सालों से स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है मार्क्स दिलवाने में, क्योंकि आई बिलीव इन ट्रेनिंग देयर माइंड्स, और उसके बाद टेस्ट या लास्ट के सैंपल पेपर प्रैक्टिस से इंश्योर कर लेते हैं दैट द प्रेजेंटेशन इज करेक्ट, है ना। तो दैट विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी। बट अभी के लिए जल्दी जल्दी से, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा रजिस्टर स्कूल टीचर को दिखा के कह दो मैम हमारी मैम तो ये करा रही है, फिर तो बोलेगी ओ माय गॉड यू आर इन रॉन्ग हैंड्स, शी इज टीचिंग यू द रॉन्ग वे। ऐसा तो मार्क्स ही नहीं आएंगे बोर्ड्स में। पर मेरे स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो पढ़ाई करें। चलो अभी, if a quadratic polynomial f of x is factorizable into linear distinct factors, तो लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स का एग्जांपल जैसे x+3, x-2, ये लीनियर है ना, लीनियर है ये लीनियर है। तो दिस इज फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर फैक्टर्स, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस। तो लीनियर से ये मतलब है, और डिस्टिंक्ट से मतलब कि ये अलग है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट अलग है। तो अगर आपके पास देर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जो कि लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, और वो नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ बताओ। फैक्टर्स जितने जितने लीनियर फैक्टर्स आए हैं बताओ। तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, 2. मतलब टू, ओके। देखो अभी मैं आपको इसको समझाती हूँ, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर, दैट लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बताए हैं ना, लेकिन टू नहीं बताए उन्होंने कि देयर आर टू लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। लेकिन आप इसको समझेंगे कैसे कि ये टू ही क्यों है, क्योंकि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, इन केस 3 होते, तो पहला जो उसका फैक्टराइजेशन होता वो यहाँ क्वाड्रेटिक होता और यहाँ लीनियर होता। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही। तो जब मैं आपको ये बात कह रही हूं कि एक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू लीनियर, तो उसका मतलब उसमें नो नो क्वाड्रेटिक इज देयर। तो अगर दोनों ही लीनियर हैं, तो इसका मतलब दो ही है ना मैक्सिमम, तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री इससे भी पता चल रही है, तो दो बनेंगे, तो उससे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस। गॉट इट एवरीवन और नॉट, क्लियर हो गई। अगर वो ये भी कहते देयर इज अ पॉलिनोमियल which is dividing into linear distinct polynomials, तब भी the answer would be 2। why 2? क्योंकि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो पहले क्वाड्रेटिक और लीनियर में ब्रेक होता है, लीनियर में दोनों साथ में या तीनों साथ में ब्रेक नहीं होते हैं, है ना। आ रही है ना बात, याद आ रही है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन किया था। तो यहाँ पे व्हाट इज द आंसर, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। if the quadratic polynomial is a square of linear polynomial, मतलब x+2 square, it is a square of a linear polynomial, इसका मतलब they'll be real and complete my dash zeros,
Equal zeros. इक्वल जीरोस, क्योंकि इसका मतलब स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है x प्लस टू टाइम्स x प्लस टू। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? डोंट जस्ट रन बिहाइंड दी आंसर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्यों है ये आंसर। तो अगर x प्लस टू स्क्वायर लिखा है मतलब x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, मतलब इस x का आंसर भी -2 और x का भी -2, तो इसका मतलब दोनों रियल हैं, दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो रियल एंड इक्वल जीरोस आएंगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? देन इट्स टू जीरोस आर कोइंसिडेंट। ट्रू? यस ट्रू, क्योंकि दोनों -2 पे कोइंसाइड कर जाएंगे ना, है ना? वो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस पे -2 पॉइंट पे, है ना? आ रही है ना बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? वो पैराबोला ऊपर चला गया लाइन से। चले अभी, इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज नॉट फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर फैक्टर्स, वो नहीं हो रहा है, देन इट हैज गॉट नो रियल जीरोस। टेल मी ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि अगर वो फैक्टराइजेबल स्टेट में नहीं है, आप उसे फैक्टर्स में चेंज नहीं कर सकते, तो उसके रियल जीरोस नहीं आते। फिर उसके जीरोस कैसे आते हैं? Non-real zero. आते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, तो वो अंडर रूट में रह जाएगा वहां पे कुछ, विच इज नॉट रैशनल, राइट और नॉट? तो वो सॉल्व ही नहीं होंगे, फैक्टराइजेबल फॉर्म में नहीं होंगे। तो आ रही है ना बात समझ में कि नहीं आ रही? चलेंगे आगे, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, अब ये क्या है? बेस्ड ऑन हॉट्स। हॉट्स के क्वेश्चन अभी छोड़ता है, हॉट्स के क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा है। जिसे लगे कि अटेम्प्ट करना चाहते हो कर लो, पर मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस बैच में अभी अवेश भी है, जो कि अभी नया बच्चा आया है। मेरे लिए बैच में अभी बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये कंटेंट अभी लॉट्स तक ही कवर होगा। और हॉट्स जस्ट एग्जाम से पहले, या तो अभी मिड टर्म से पहले सोचेंगे, नहीं तो फिर बोर्ड्स, फर्स्ट बोर्ड्स पे। ओके एवरीवन, तो अब आपके पास क्लिक्स हैं व्हाट्सएप पे, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करो। कौन से क्वेश्चन से कहाँ तक? 29, 1 to 29 क्वेश्चंस। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं?